بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، آج ہم آپ کو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپن سے لے کر جوانی تک کا پورا واقعہ سنائیں گے، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ اس لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، پہلے عرب کے قبیلوں کا جاہلانہ رواج تھا۔ ہر قبیلے کا اپنا اپنا مذہب تھا اور ان سب کے دیوی دیوتا بھی الگ الگ تھے۔ کوئی مورتی کی پوجا کرتا تھا تو کوئی آگ کی۔ یہودیوں اور عیسائیوں کے بھی قبیلے تھے اور وہ بھی مذہب کے بگاڑ کے شکار تھے۔ اس وقت لوگ اللہ کو چھوڑ کر انسانوں اور پیڑ پہاڑوں کی پوجا کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ پورے عرب میں دنگا فساد عام تھا، عورتیں اور بچے محفوظ نہیں تھے، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اس اندھیرے دور سے دنیا کو باہر نکالنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ دوستوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 12 ربیع الاول 571 عیسوی میں پیر کے دن اور صبح صادق یعنی فجر کے وقت مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی آپ کے دادا عبد المطلب آپ کو اپنے گود میں اٹھا کر کعبہ شریف میں لے گئے، آپ کے لیے دعائیں کی اور آپ کا نام رکھا محمد۔ پوتے کی پیدائش کے خوشی میں آپ کے دادا نے 7ویں دن اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت کی۔ لوگوں نے آ کر آپ کے دادا سے پوچھا کہ آپ نے ان کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ تو آپ کے دادا نے جواب دیا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پوتے پر اسلام کا اثر پڑے، اور آپ کی والدہ سیدہ آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ دوستوں، پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ کی ختنہ پہلے سے ہی کی ہوئی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، اور آپ کا تمام بدن پاکیزہ تھا۔ جب آپ کے دادا عبد المطلب نے اپنے پوتے کو ختنہ شدہ اور ناف کٹا ہوا پایا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئے اور فرمایا کہ میرا پوتا بڑی نرالی اور بڑی شان والا ہوگا۔ اور یہی نہیں، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی مٹھی مبارک بھی بند تھی، مگر شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، اور ایسا لگ رہا تھا جیسے خدا کی وہ ادا نیت کا اقرار کر رہی ہے۔ دوستوں، جب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے تو اس وقت عرب میں یہ رواج ہوا کرتا تھا کہ شہر کے بڑے لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلوانے کے لیے اور پلنے بڑھنے کے لیے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ گاؤں دیہات کی کھلی ہوا میں رہ کر ان کا بچہ خوب صحت مند بنے۔ کیونکہ دوستوں، اس زمانے میں گاؤں دیہات کا موسم شہروں کے مقابلے زیادہ صاف ستھرا اور زیادہ اچھا ہوا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے گاؤں دیہات میں پلے بچے زیادہ صحت مند اور موٹے تازے ہوا کرتے تھے۔ دوستوں، اسی رواج کے مطابق پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھی مکہ سے دور کے قریب ایک علاقہ ہے جہاں بنی سعد قبیلہ رہتا ہے، وہاں لے جایا گیا اور ایک دائی کو سونپ دیا گیا جس کا نام دائی حلیمہ تھا، اور وہ بنی سعد قبیلے سے تھے، اس لیے ان کو حلیمہ سعدیہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوستوں، دائی حلیمہ بہت غریب گھرانے سے تھیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کا ذمہ لیا، یہ سوچ کر کہ 2 سال ان کی پرورش کروں گی تو اس کے بدلے میں مجھے کچھ مال مل جائے گا، تاکہ اس سے ان کی زندگی کا گزر بسر اچھی طرح سے ہو سکے۔ دوستوں، جیسے ہی حضرت آمنہ نے اپنے پیارے بیٹے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دائی حلیمہ کے حوالے کیا، اور یوں دائی حلیمہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا، تو اس وقت سے دائی حلیمہ کی زندگی میں رحمتوں اور برکت ہونی شروع ہو گئی۔ دوستوں، تو اس وقت عربوں میں یہ رواج تھا کہ بچے کی پرورش کا ذمہ 2 سال کا ہوا کرتا تھا، اور ہر 6 مہینے کے بعد بچے کو اس کے گھر والوں سے ملانا ہوتا تھا۔ اسی رواج کے مطابق دائی حلیمہ بھی 6 مہینے کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ان کی ماں سے ملانے کے لیے مکہ پہنچی۔ ان کے ساتھ ان کا شوہر حریش اور ان کا ایک چھوٹا بچہ بھی تھا۔ جو ان کی گود میں تھا وہ بچہ بھوک سے رو رہا تھا، کیونکہ حلیمہ بہت کمزور تھی اور کھانے پینے کی کمی بھی تھی۔ اس وجہ سے
दाई हलीमा दूध नहीं पिला पा रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खूब सैर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दूध पी लेने के बाद दाई हलीमा ने अपने मासूम बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। ये देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से ये बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने शौहर हरीश और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ एक दुबली पतली सी ऊंटनी पर सवार हो गई। वो ऊंटनी जब बनी साद के कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी, लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊंटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊंटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊंटनी को आखिर क्या हो गया कि वो अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी। दोस्तों, ये नजारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगीं, हलीमा, हम पर रहम करो, धीरे चलो। क्या ये वही ऊंटनी है जिस पर तुम मक्का आई थी? तो ये सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक्या मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा की जिंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गए, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वह पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी जिंदगी में खूब देखा। इस वजह से उनका दिल नहीं जा रहा था कि वे उस नूरानी बच्चों को वापस उसके घर वालों को सौंप दें, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वे मक्का में पहुंची तो हजरत आमना से कहने लगे कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकत और रहमतों वाला बच्चा है। जब से ये बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास रहने दें। मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश करना चाहती हूं। तो ये सुनकर हजरत आमना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार कहने पर हजरत आमीना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन और अपने पास रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों, ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र मुबारक 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा सादिया का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दुध शरीके भाई भी था। वे सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों, इतिहास की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्रील आपके पास आए तो आपको जमीन पर लिटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को चीर दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर जो एक काले रंग का छोटा सा लोथरा था उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों, इधर ये देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वह दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे
कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगे कि मुझे 2 साल के बाद ही उसको इसकी माँ को दे देना चाहिए था। अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? ये सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। ये देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी, अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को हजरत आमना के हवाले कर दिया। दोस्तों, उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमना के पास रहने लगे। उसके बाद जिंदगी के दिन बीतते चले गए। सन 575 या 576 में जब आपकी उम्र 5 और 6 साल के बीच हुई, तब आप अपनी माँ हजरत आमना के साथ और अपने दादा अब्दुल मुतल्लिब के साथ मदीना की तरफ निकले। मदीना में आपके लिए 2 खास बातें थीं। एक तो ये कि मदीना में आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह की कब्र मुबारक थी, और दूसरी बात ये थी कि मदीना में आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब का ननिहाल भी था। दोस्तों, उस जमाने में सफर 1 महीने या 1.5 महीने का हुआ करता था, इसलिए आपका ये सफर भी तकरीबन महीने भर का था। 1 महीने के बाद जब आप पलटकर वापस मक्का की तरफ आ रहे थे, तो आपकी जिंदगी में जो वाक्य पेश आया, उसे देखकर आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने बचपन की उम्र में ही आपको दूसरा बड़ा झटका लगा और अल्लाह ने आपको एक और आजमाइश में डाल दिया। दोस्तों, हुआ ये कि आप जब 1 महीने के बाद मदीना से वापस मक्का आ रहे थे, तो रास्ते में ही आपकी वालिदा हजरत आमना की तबीयत बिगड़ गई और वो बुरी तरह से बीमार पड़ गई और उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अल अबुआ नाम की एक जगह है, वहीं पर हजरत आमना को दफन किया गया और इस तरह से आप 6 साल की उम्र में ही यतीम हो गए। आपकी इस हालत को देखकर आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब बहुत परेशान हुए और वह रोने लगे। एक तो ये कि आपकी पैदाइश की कुछ दिन पहले आपके वालिद हजरत अब्दुल्लाह का इंतकाल हो गया था, और अब दूसरा झटका ये लगा कि आपकी उम्र अभी 6 साल की भी नहीं हुई थी कि आपकी वालिदा का भी इंतकाल हो गया। ये देखकर आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब को बहुत दुख हुआ, मगर वो भी क्या करते, एक दिन तो सबको मरना है। उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने आपको अपने गोद में उठाया और मक्का की ओर चल पड़े, इस फिकीर के साथ, इस सोच के साथ कि आखिर इस मासूम से बच्चे के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। दोस्तों, जरा आप सोचकर देखिए कि उन बच्चों पर क्या बीतती होगी जो बचपन में ही यतीम हो जाते हैं, जिनके वालिद और वालिदा का इंतकाल बचपन में ही हो जाता है। उसके बाद ऐसे बच्चे को लोग धिक्कार भरी नजरों से देखते हैं। फिर ऐसे बच्चों के साथ अच्छा बर्ताव भी नहीं किया जाता, मगर आपके साथ अल्लाह की मदद थी, जैसा कि अल्लाह ने खुद कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि आपकी यतीम होने पर अल्लाह की मदद आपके साथ भी थी। इसी वजह से आपके साथ अच्छा मामला पेश आया और अल्लाह ने आपको सहारा दिया। दोस्तों, उसके बाद आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब आपको गम के साथ लेकर मक्का में पहुंचे। आपके घर के अंदर गम का माहौल था। अब्बू तालिब, जो आपके चाचा थे, आपको इस हालत में देखकर रोने लगे। अब्बू तालिब आपको बहुत चाहते थे और अब्दुल मुतल्लिब अपने बेटों से ज्यादा, अपने पोतों से ज्यादा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को चाहते थे। मेरे दोस्तों, हम आपको बता दें कि अब्दुल मुतल्लिब वो शख्स थे जो कुरैश के बहुत बड़े सरदार थे। उनकी लोग सबसे ज्यादा इज्जत किया करते थे। काबा की छांव में उनके लिए एक खास फर्श बिछाया जाता था, जिस पर सिर्फ वही अकेले बैठते थे। किसी दूसरे को उस पर बैठने की इजाजत नहीं होती थी। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी छोटे थे। खेलते खेलते वहां पर आ जाया करते थे और आकर उस पर बैठ जाया करते थे और हजरत अब्दुल मुतल्लिब बिठा लेते थे। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब के दिल में आपके लिए मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। आपकी वो हर ख्वाहिश का ख्याल रखते थे, आपकी हर जरूरत को वो पूरा किया करते थे। आपको किसी भी तरह की
कोई तकलीफ नहीं होने देते थे। वह हमेशा आपको अपने साथ रखते, अपने साथ में घुमाते फिराते और हमेशा आपको खुश रखते। दोस्तों, ऐसा करते करते दिन बीतते चले गए। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल की हो गई। मगर सोचिए, अल्लाह के नबी ने कैसी कैसी आजमाइशों से गुजरकर अपनी जिंदगी का सफर पूरा किया। अब आपकी उम्र मुबारक 8 साल 2 महीने 10 दिन की हुई तो एक दिन अचानक आपके दादा अब्दुल मुतल्लिब का इंतकाल हो गया। मरते वक्त आपके दादा ने आपके परवरिश का जिम्मा अब्बू तालिब को सौंप दिया। अब्बू तालिब आपके सगे चाचा थे। दोस्तों, जरा सोचिए, उस बच्चे पर क्या गुजरती होगी जिसके बचपन में ना तो मां का साथ होता है और ना ही बाप का साथ। एक दादा का सहारा होता है, वो भी चला जाता है। उसके बाद आपकी परवरिश का जिम्मा आपके चाचा अब्बू तालिब उठाते हैं। दोस्तों, उसके बाद अब्बू तालिब ने आपको सहारा दिया, आपकी हर तरह से हिफाजत की, आपके दुश्मन से, तलवार से, हर तरह से आपको महफूज रखा और आखिरी सांस तक आपकी मदद करते रहे। हालांकि अब्बू तालिब पैसे वाले नहीं थे, फिर भी आपको किसी भी बात की कमी महसूस नहीं होने दी। आप जिस भी चीज की ख्वाहिश करते थे, आप वो पूरी कर देते थे। दोस्तों, उसके बाद दिन बीतते चले गए। अब्बू तालिब जब भी किसी सफर पर जाते तो आप हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर जाते, क्योंकि उस जमाने में सफर बहुत लंबा हुआ करता था। 1-1.5 महीने का सफर होता था और अब्बू तालिब नहीं चाहते थे कि ये मासूम सा बच्चा है जिसके ना वालिद ना वालिदा का सहारा है, ना कोई दादा का सहारा है, उसको किसी और के भरोसे छोड़कर जाऊं और उसको तकलीफ हो। दोस्तों, एक बार अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ तिजारत के लिए रवाना हुए। याद रखें, पहले अरब में जो लोग थे, खास करके कुरैश के लोगों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था, यानी कि वे एक जगह से सामान खरीदते थे और दूसरे जगह पर ले जाकर उसको बेच देते थे। इस तरह से वे लोग सामान खरीदते और बेचते थे। इसी काम के सिलसिले में अब्बू तालिब अपने काफिले के साथ मुल्क शाम की तरफ निकले। साथ में आपने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी ले लिया और आपको एक ऊंटनी पर सवार करा दिया। अब्बू तालिब का जब ये काफिला मुल्क शाम के बॉर्डर को पहुंचा तो रात हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर अपना पड़ाव डाला ताकि वे वहीं पर रात गुजार सके और अपनी थकान दूर कर सके। दोस्तों, हम आपको बता दें कि उस जमाने में राहिब हुआ करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह पैदल जाया करते थे। उस जमाने में एक ईसाई राहिब था, यानी कि क्रिश्चियन राहिब था, जो लोगों की रहनुमाई करता था। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलता था, यानी कि वह हमेशा अपने घर के अंदर ही रहता था। जब उसको मालूम चला कि उनके सामने किसी ने पड़ाव डाला है तो वह दौड़ता हुआ उनके पास आया और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ले लिया और अब्बू तालिब से कहने लगा कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है। उसकी ये बात सुनकर अब्बू तालिब हैरान हुए और पूछने लगे कि तुम्हें कैसे पता? तुमको किसने बताया है कि ये बच्चा सारी दुनिया का सरदार बनकर आया है? तो उस राहिब ने कहा कि जब तुम उस घाटी से इधर इस घाटी में आ चुके थे तो इस घाटी में ऐसा कोई भी दरख्त और पत्थर नहीं था जो इस बच्चे को देखकर ना झुका हो, और पत्थर और दरख्त सिर्फ उन्हीं लोगों के आगे झुकता है जिसको अल्लाह अपना पैगंबर बनाकर भेजता है। उसके बाद वह कहने लगा कि तुम इस बच्चे को मुल्क शाम की तरफ लेकर मत जाना, क्योंकि आगे यहूदियों से इनको खतरा है, कहीं वो इसको कत्ल ना कर दे। और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूं, क्योंकि तौरात और इंजील में इनके रसूल होने का जिक्र आया है, और मैं इस बच्चे को अच्छी तरह से पहचानता हूं। इनकी पीठ के नीचे एक सेब की तरह जो नबूवत की मोहर लगी है, उस मोहर से भी मैं इनको पहचानता हूं, लिहाजा तुम इन्हें मुल्के शाम लेकर मत जाना। दोस्तों, अब अब्बू तालिब को उस राहिब की बातों पर यकीन आ चुका था कि वो जो कह रहा है बिल्कुल सच कह रहा है। उसके बाद अब्बू तालिब ने किसी शख्स के जरिए से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वापस मक्का में पहुंचा दिया, क्योंकि अब्बू तालिब को अब यह मालूम हो चुका था
کہ یہ جو بچہ ہے یہ کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، یہ بچہ خاص مرتبے والا بچہ ہے۔ اس کے بعد ابو طالب آپ کی پرورش اور آپ کی حفاظت کے معاملے میں اور زیادہ چوکنے ہو گئے اور آپ کی ہر طرح سے حفاظت کرنے لگے۔ اس کے بعد جب آپ جوان ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچائی اور ایمانداری کو دیکھ کر ایک بار حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اپنا مال دے کر شام میں تجارت کے لیے بھیجا اور ساتھ میں اپنے ایک غلام کو بھی لگا دیا۔ اللہ کے فضل و کرم سے تجارت میں بہت فائدہ ہوا۔ حضرت خدیجہ کے غلام جن کا نام مسیرہ تھا، انہوں نے بھی آپ کی ایمانداری اور اچھے اخلاق کی خوب تعریف کی۔ یہ دیکھ کر حضرت خدیجہ آپ کی طرف مائل ہوئی، یعنی کہ حضرت خدیجہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت پربھاوت ہوئی اور اس کے بعد آپ نے خود ہی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا پیغام بھیجا۔ دوستوں، ہم آپ کو بتا دیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عرب میں ایک کامیاب بزنس وومن تھی اور اپنے ویاپار سے ہوئی کمائی کو حضرت خدیجہ غریب اناتھ ودھوا اور بیماروں میں بانٹا کرتی تھی۔ انہوں نے ان گنت غریب لڑکیوں کی شادی کا خرچہ بھی اٹھایا تھا اور اس طرح ایک بے حد نیک اور سب کی مدد کرنے والی عورت کے روپ میں اسلام میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کی اتہاس میں ان کا بڑا یوگدان رہا ہے۔ یعنی کہ حضرت خدیجہ ہمیشہ غریب لوگوں کی اناج اور کپڑوں سے مدد کیا کرتی تھی۔ حضرت خدیجہ مورتیوں میں وشواس نہیں کرتی تھی اور نہ ہی ان کی پوجا کرتی تھی۔ دوستوں، ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حضرت خدیجہ کی پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہونے سے پہلے 2 شادیاں ہو چکی تھیں اور ان کے اپنے پہلے دونوں شوہر سے بچے بھی تھے۔ انہوں نے اپنا پہلا نکاح ابو حالہ سے کیا تھا جن سے ان کو 2 بیٹی ہوئی تھیں، مگر اس کے بعد ابو حالہ یعنی کہ ان کے پہلے شوہر کی موت ہو گئی اور اس کے بعد حضرت خدیجہ نے دوسری شادی عتیق ابن زید کے ساتھ کی جن سے ان کو ایک بیٹی ہوئی، مگر یہ بھی تھوڑے دنوں کے بعد اس دنیا سے چل بسے اور یہ پھر سے بیوہ ہو گئی۔ ان کے بعد عرب کے بڑے بڑے تاجدار نے سرداروں نے خدیجہ کے ساتھ شادی کی پیشکش کی، مگر حضرت خدیجہ راضی نہ ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف مائل کر دیا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایمانداری اور تجارت سفر کو دیکھ کر تیسرے نکاح کا پیغام آپ نے خود ہی اپنی ایک خاص سہیلی جس کا نام نفیسہ تھا، اس کے ذریعے آپ نے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا تو یہ سن کر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اس کے بارے میں پہلے اپنے چاچا ابو طالب اور اپنی چاچی سے بات کریں گے، اس کے بعد وہ اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ دوستوں، اس کے بعد پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پیغام کے بارے میں اپنے چاچا ابو طالب سے بات کی، یعنی کہ ان کو اس پیغام کے بارے میں بتایا تو یہ سن کر آپ کے چاچا ابو طالب بہت زیادہ خوش ہوئے اور نکاح کروانے کے لیے راضی ہو گئے اور آپ کو اجازت دے دی۔ آپ کے چاچا حضرت حمزہ نے خدیجہ کے چاچا عمر بن سعود سے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ولی یعنی کہ بڑے ہونے کی حیثیت سے بات چیت کی اور 20 اونٹنی مہر یعنی نکاح کے وقت عورت یا بیوی کو دی جانے والی رقم یا جو آپ کی حیثیت میں ہو یہ دے کر آپ کے چاچا ابو طالب نے آپ کا نکاح پڑھا دیا۔ دوستوں، اس کے بعد حضرت خدیجہ اور پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نکاح کا خطبہ آپ کے چاچا ابو طالب نے پڑھا، اس میں اللہ کی حمدوں ثنا کی گئی۔ اس کے بعد قبول نامہ ہوا اور مہر بیان کیا گیا، مہر میں 20 اونٹنی لکھی گئی۔ دوستوں، یہ ملک شام کی واپسی کے 2 مہینے کے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال کی تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضرت خدیجہ آپ کی پہلی بیوی تھی، آپ کی تمام اولادیں بھی انہی سے ہوئی ہیں، صرف حضرت ابراہیم حضرت ماریہ سے پیدا ہوئے تھے۔ دوستوں، پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد یہ ہے، یعنی کہ آپ کی اولادوں کے نام یہ ہیں:
पहले कासिम, फिर जैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा और फिर अब्दुल्लाह। आपकी तमाम लड़के बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। अलबत्ता आधी बच्चियों ने आधी नबूवत को पाई, ईमान लाई और हिजरत भी की, और सब की सब आपकी जिंदगी में ही इंतकाल कर गई। सिर्फ हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपके इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के 6 महीने बाद इस दुनिया से रुखसत हुई। हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा आपकी पहली बीवी है। जब आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर पहली आयत नाजिल हुई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले आपको बताया, इस्लाम कबूल करने वाली में हजरत खदीजा पहली खातून है। इस्लाम को फैलाने में न सिर्फ आपने साथ दिया बल्कि माली तौर पर भी आपने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत क्या करते थे। हजरत खदीजा और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ तकरीबन 25 साल तक रहा। अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खदीजा दुनिया की बेहतरीन औरतों में से हैं। आप रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद भी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अक्सर आपको याद किया करते थे और आपकी सहेलियों को हदिया भेजवाते रहते थे। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तमाम औलादें यानी कि आपके 6 बच्चे हजरत खदीजा से ही हैं, सिवाय हजरत इब्राहिम रजी अल्लाह ताला अन्हो के। हजरत खदीजा की कब्र मुबारक जन्नतुल मुल्ला मक्का में है। जिस साल हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा और आपके चाचा अब्बू तालिब का इंतकाल हुआ था, उस साल को आपने गम का साल करार दिया। मेरे दोस्तों, ऐलान नबूवत से पहले अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुछ खाने पीने का सामान अपने साथ लेकर गारे हिरा की पहाड़ी पर चले जाया करते थे और वहां जाकर अल्लाह की इबादत करते थे, यानी कि अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। ये सिलसिला काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहा, यानी कि काफी दिनों तक आप इसी तरह से गारे हिरा की पहाड़ी पर जाकर अल्लाह की इबादत करते रहे। एक मर्तबा अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गारे हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल थे कि इतने में आपके पास हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी असल शक्लों सूरत में आपके पास तशरीफ लाए, यानी कि अचानक हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपके सामने नाजिल हो गए। हम आपको बता दें कि ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के सारे फरिश्तों के सरदार है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत इतनी है कि अगर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना एक पर फैला दें तो पूरब से लेकर पश्चिम तक इस पूरी दुनिया को छुपा लें। यानी कि इतना बड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम का एक पर है और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के इस तरह के 70,000 पर है। अब आप सोचिए कि हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कितने ज्यादा बड़े होंगे। इसके अलावा हजरत जिब्रील की स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये पलक झपकते ही सिदरा से जमीन पर आ जाते हैं और पलक झपकते ही जमीन से वापस सिदरा पर पहुंच जाते हैं। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की ताकत का आलम है। अगर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चाहे तो इस पूरी जमीन को उठाकर पलट सकते हैं। कौमे लूत को इसी तरह से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पलटा था। ये हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की शान है जो अल्लाह के एक फरिश्ते हैं। दोस्तों, यही हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली बार अपनी असली शक्लों सूरत में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो गए और कहने लगे, पढ़ो इकरा। ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दोबारा कहा, पढ़ो इकरा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने तीसरी मर्तबा कहा, पढ़ो इकरा, तो आपने फिर कहा, मैं नहीं पढ़ता। उसके बाद हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाया और सीने से
इस तरह से लगाया कि हजरत जिब्रील ने हुजूर पाक की बगल में अपने दोनों हाथ डाले, यानी कि अल्लाह के नबी के दोनों हाथ बाहर की तरफ कर दिए, और फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने प्यारे नबी को अपने सीने से लगाया और फिर जोर से दबा दिया, यानी कि बहुत जोर से दबाया। हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि उस वक्त हजरत जिब्रील ने मुझे इतनी जोर से दबाया था कि करीब था कि मेरी जान निकल जाती, मगर जिब्रील ने मुझे जोर से दबाकर छोड़ दिया और फिर फरमाया कि पढ़ो अपने रब के नाम के साथ जिसने आपको और तमाम दुनिया को पैदा फरमाया है, पैदा किया है। इंसान को जमीन व खून के जमे हुए एक लोथर से पढ़ो। हाल ये है कि तुम्हारा रब बड़ा ही रहम करने वाला है। फिर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ने लगे और फिर आप बहुत घबरा गए। गाड़े हिरा के पहाड़ी से उतर गए और अपने घर आ गए। यानी कि ये वाक्य होने के बाद अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घबराए हुए अपने घर तशरीफ लाए। उस वक्त आपका बदन कांप रहा था जिस तरह से इंसान का बदन सर्दी से कांपता है, यानी कि उस वक्त आप बहुत ही ज्यादा खौफ की हालत में आ गए थे। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ही ज्यादा घबराए हुए अपने घर आए और आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाने लगे, चादर लाओ और मुझको चादर उड़ा दो। हजरत खदीजा चादर लेकर आई और फिर वे चादर ओढ़कर सो गए। उसके कुछ देर बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर से ख्वाब के हसरत कम हुए तो आपने अपनी बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को ये सारा वाकया बयान किया, यानी कि गाड़े हिरा की पहाड़ी पर जो भी आपके साथ हुआ था सारा वाकया अपने हजरत खदीजा के सामने बयान कर दिया। ये वाकया सुनकर हजरत खदीजा ने फरमाया कि आपके ऊपर ये कोई शैतानी काम नहीं हो सकता है, क्योंकि आपने तो हमेशा गरीबों की मदद की है, आपने तो हमेशा बेवा को सहारा दिया है, आप तो हमेशा यतीम के सहारे बने हो, आपने हमेशा बेसहारा लोगों की मदद की है, इसलिए आपके साथ में अल्लाह ताला कभी कुछ गलत नहीं होने दे सकता। आपको अल्लाह कभी इस तरह से जाया नहीं करेगा। दोस्तों, उसके बाद में हजरत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ में लेकर अपने चाचा जाद भाई हजरत बराक इब्ने नौफ के पास पहुंचे, जो उस वक्त यहूदियों के एक बहुत बड़े आलिम हुआ करते थे। ये असल में पहले मुशरिक थे, यानी कि बूत प्रस्त थे, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा तालीम याफ्ता थे, इसलिए बाद में इन्होंने ईसाई धर्म को कबूल कर लिया था और फिर उन्होंने तौरात और इंजील को हिज भी कर लिया था, यानी कि ये उस वक्त तौरात के एक बहुत ही बड़े आलिम थे। इसलिए हजरत खदीजा अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को साथ लेकर अपने इन्हीं चचा जाद भाई के पास पहुंची और जाकर सारा वाकया बयान कर दिया। हजरत बराक इब्ने नौफ के उस वक्त अपने बुढ़ापे की वजह से बीनाई चली गई थी, यानी कि उस वक्त वो देख नहीं पा रहे थे। जब उन्होंने अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हालत सुनी तो पूछने लगे कि आपको क्या हुआ, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं गाड़े हिरा की पहाड़ी पर अल्लाह की इबादत में मशगूल था। इतने में मेरे पास इस तरह से एक बहुत बड़ा शख्स अचानक से मेरे सामने आ गया और फिर कहने लगा कि पढ़ो। जब मैंने नहीं पढ़ा तो उसने फिर अपने सीने से लगाकर मुझको बहुत ही जोर से दबाया, फिर मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया कि हजरत बराक इब्ने नौफ उस वक्त की तौरात और इंजील के एक बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए वे अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए वे ये सुनकर कहने लगे कि अल्लाह की कसम, जो भी आपके पास में आया था वो वही अल्लाह का फरिश्ता था जो हजरत मूसा और हजरत ईसा के पास आता था। वो फरिश्ता आपके पास में आया था और अनकरीब है कि अब आपकी कौम आपको इलाके से, आपको अपने शहर से बाहर निकाल देगी, क्योंकि आज तक जिसने भी हक की आवाज उठाई है, जितने भी आज तक नबी इस दुनिया में आए हैं,
उन सबको इसी तरह से सजा दी गई है। क्योंकि हजरत बराक इब्ने नौफ तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे, इसलिए वो अल्लाह के आखिरी नबी के आने की तमाम निशानियों से अच्छी तरह से वाकिफ थे। इसलिए उन्होंने ये सारी बातें आपको बता दी, और उन्होंने इससे पहले हजरत खदीजा से भी ये सुन चुके थे कि वो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से निकाह भी इसलिए किया था कि आप सच्चे हैं, आप हमानादार हैं। ये सारी बातें बताकर फिर हजरत बराक इब्ने नौफ फरमाने लगे, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। उसके बाद ये सुनकर वहीं पर हजरत खदीजा ने आपका पहला कलमा पढ़ लिया, यानी कि हजरत खदीजा पहली खातून थी जो आप पर ईमान ले आई, और दूसरे हजरत बराक इब्ने नौफ थे जिसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तस्दीक की, यानी आपके बारे में बताया, यानी कि दूसरा कलमा इन्होंने पढ़ा। तो मेरे दोस्तों, आगे का वाक्या इंशा अल्लाह हम अपलोड करेंगे, इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इंशा अल्लाह ताला अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबको नेक काम करने की तौफीक अता करें, आमीन।